Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all in Science 8 class. Today we are going to start our lecture number 10, that is about mutations. In the previous lecture we have studied about variations. What are variations? Variations are differences in phenotypes, in physical appearance, physical characteristics. Gene mutation या mutations are the differences, same differences in genetic makeup. For example, you have seen that your class fellows has blue eyes or brown eyes. So these are the differences or variations in phenotype and their genetic makeup. Their differences in genes are called mutations. So these mutations are one of the causes that cause variations in phenotypes. So we'll start our lectures. The corresponding page is page number 15 of your science book. First of all, answer one question that I'll ask you. What do you expect to happen if the genetic code or sequence of nucleotides in a gene changes? अगर आपकी genes change हो जाए तो क्या होगा? Obviously, your characteristics will change, your phenotype will change, and it will cause variations in physical characteristics. So here we define the mutations. Mutations are changes in genetic makeup. Genetic makeup here means genes, or genes में changes means changes in order of nucleotide. These, as you know, inherited traits are usually permanent. Any change that is genetic, that has genetic basis, that is linked to the genes is always permanent. It cannot be depleted, it cannot be reduced, it cannot be excluded of your personality. Mutations can alter these traits, introducing new genetic variations. However, these permanent changes can be altered if there are changes in genetic makeup. अगर हमारा genetic makeup change हो जाए, अगर हमारे genes में nucleotide का sequence change हो जाए, तो जो हमारी permanent traits हैं, permanent features हैं, उनमें changes आ सकती हैं. So how can these variations arise? These variations arise due to crossing over during meiosis. आप crossing over और meiosis के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये सब क्या है. During the crossing over, genetic material exchanges. Whenever genetic material exchange, it causes variations in characteristics. So one of the cause of genetic change or mutation is crossing over. The example of meiosis or genetic crossing over is eye color that we have discussed previously. Another cause or source of genetic mutation is mistakes in DNA replication. DNA replication is a process in which DNA replicates it's all the material, it's all the nucleotides, and we call such DNA homologous chromosomes. आपने पढ़ा था कि homologous chromosomes ऐसे chromosomes हैं जिसमें एक ही तरह की genes present होते हैं. यानी DNA जब अपने आप को copy कर लेगा तो वो homologous chromosomes बनाएगा. यहाँ पे हमारे पास एक example है कि DNA की replication के दौरान जब एक DNA का strand दो DNA strands में चेंज होता है, उस दौरान अगर ज़रा सी भी चेंज हो जाए, ज़रा सी भी म्यूटेशन वेरिएशन आ जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल, एक आपके पास एग्जांपल है कि नॉर्मल स्किन कलर के लिए जो जीन है वो कुछ इस तरह से है. ये एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल. इन रियलिटी नॉर्मल स्किन कलर के लिए जीन्स इससे ज़्यादा लंबी हो सकती हैं. अब देखिए, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एक थोड़ा सा बेंड आ गया इस डीएनए की बैक में. डीएनए की जो फॉस्फेट बोन थी उसमें थोड़ा सा ब्रिज बन गया या थोड़ा सा कर्व आ गया. तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग की स्किन होगी वो फ्रेकल स्किन होगी. दिस इज हाउ चेंजेस इन डीएनए और जीन्स अफेक्ट आवर कैरेक्टरिस्टिक्स. जरा सा भी इवन यहाँ पे ना तो कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, ना कोई नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है, ना कोई डिलीट हुआ है. जस्ट अ स्मॉल बेंड इन द वेरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल हैज चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स. तो स्किन नॉर्मल से फ्रेकल की तरफ चली गई है. सो मिस्टेक्स इन रेप्लिकेशन आर वन ऑफ द कॉजेज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस. Another cause is uneven cell division.
ड्यूरिंग मेयोसिस। याद रखिए अनइवन सेल डिवीजन मेयोसिस के दौरान जब होगी तो वेरिएशंस कॉज करेंगी। मेयोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैज रिड्यूस्ड टू हाफ, यानी गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके बारे में भी आप जान चुके हैं। हम जस्ट यहाँ पे रिवाइज करेंगे कि अगर एक हेल्दी पेरेंट्स है, एग्जाम्पल लेते हैं, हेल्दी पेरेंट्स है 46 क्रोमोसोम्स, ईच पेरेंट प्रोड्यूस्ड गैमीट्स जिसमें 23 क्रोमोसोम्स थे। नॉर्मल कंडीशंस में दोनों पेरेंट्स के 23 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, लेकिन इन केस ऑफ एनी म्यूटेशन, इन केस ऑफ एनी एनॉमली, क्रोमोसोम्स अपने म्योटिक स्टेज में पूरी तरह से मेयोसिस 1 में अगर सेपरेट ना हो तो हो सकता है कि कोई क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाए। एज यू कैन सी इन पिक्चर हेयर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 22 पे आ चुका है। यहाँ पे 2 होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 22 भी है। तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स हैं, 24 बन गए हैं। इसका इफेक्ट क्या होगा? सिर्फ एक क्रोमोसोम के डबल होने से जो ऑफस्प्रिंग होगा वो डाउन सिंड्रोम होगा। डाउन सिंड्रोम इज अ कलेक्शन ऑफ डिजीजेस और कलेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होते हैं, फेशियल फीचर्स आप देख सकते हैं, हेल्थ और उनका रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट यानी उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ भी नॉर्मल पर्सन से थोड़ी चेंज होती हैं। सो सिर्फ एक क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन की वजह से, म्यूटेशन होने की वजह से ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम 47 हो गए इंस्टेड ऑफ 46, और इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो डाउन सिंड्रोम चाइल्ड होगा। सो दिस इज हाउ म्यूटेशंस कॉज, दिस इज हाउ म्यूटेशन अकर इन आवर जीन्स, इन आवर जेनेटिक मेकअप, जो कि हम अल्टीमेटली हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अफेक्ट करती हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये जो म्यूटेशंस होती हैं, ये तमाम की तमाम हार्मफुल नहीं होती। इनमें से बहुत सी म्यूटेशंस ऐसी हैं जो बेनिफिशियल हो सकती हैं, जैसा कि प्लांट्स अगर अपने अंदर ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी जीन्स डेवलप कर लें या ऐसी जीन्स उनमें इंसर्ट कर दी जाएं जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट जीन्स हों, तो क्या होगा कि प्लांट्स हर तरह के एनवायरनमेंट में फ्लरिश कर सकेंगे। सो ये जो म्यूटेशन है ये उसके प्लांट के लिए बेनिफिशियल होगी, और हम इस तरह के प्लांट्स डेवलप भी कर रहे हैं जिनमें प्लांट्स में जीन ड्रॉट रेजिस्टेंट या फिर फंगल रेजिस्टेंट या फिर बैक्टीरियल रेजिस्टेंट जीन्स इंसर्ट करके प्लांट्स को इस काबिल बना रहे हैं कि वो अपने एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस कर सकें। सो हर म्यूटेशन हार्मफुल नहीं होती, बहुत सी म्यूटेशंस बेनिफिशियल भी होती हैं। कुछ म्यूटेशंस ऐसी हैं जो कि न्यूट्रल हैं, वो ना तो कोई इफेक्ट, ना तो कोई बेनिफिशियल इफेक्ट देती हैं और ना ही कोई नुकसान देती हैं। जबकि बहुत कम म्यूटेशंस ऐसी हैं जो कि हार्मफुल हो सकती हैं, जैसा कि डिजीजेस, रिड्यूस्ड फिटनेस, ऐसी म्यूटेशन। अगर कोई म्यूटेशन, जैसा कि आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, अनइवन सेल डिवीजन की वजह से चाइल्ड डाउन सिंड्रोम चाइल्ड बनता है, तो ये एग्जांपल है हार्मफुल म्यूटेशन की। सो म्यूटेशन डिपेंड्स अपॉन कि किस स्टेज पे आ रही है म्यूटेशन, किस जीन्स में आ रही है और उस जीन का इफेक्ट क्या है। सो इट वाज ऑल अबाउट म्यूटेशंस। अब इनका इम्पैक्ट क्या है? म्यूटेशंस तो आ रही हैं, अगर तो वो म्यूटेशन हार्मफुल है तो वो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवेबिलिटी को, उसके सर्वाइव करने की कैपेसिटी को कम करेगी। लेकिन अगर होने वाली म्यूटेशन, अगर जीन्स में होने वाला चेंज बेनिफिशियल है ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो अल्टीमेटली उसके सर्वाइवल को प्रमोट करेगी, एनहेंस करेगी, और ये सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म की नेचुरल सिलेक्शन में हेल्प करेगा। ये एक एग्जांपल है आपके सामने नेचुरल सिलेक्शन की, कि वेरी लॉन्ग टाइम अगो जो जिराफ थे वो शॉर्ट नेक थे, इनकी नेक नॉर्मल जिराफ जो आजकल हम देखते हैं इनसे बहुत कम होती थी। इसकी वजह ये थी कि जो प्लांट्स की ब्रांचेस थी, चूँकि वहाँ पे ग्रीनरी, उस टाइम पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, तो प्लांट्स की ब्रांचेस भी लोअर थी, शॉर्ट हाइटेड थी, तो ईजीली जिराफ्स इन्हें खाते चले गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जिराफ्स अपने इर्द गिर्द के एरिया से तमाम जो लीव्स थे वो ख़त्म हो गए, तो जो ऊंचाई पे मौजूद ब्रांचेस थी सिर्फ वो रह गई। तो जिराफ ने खुद को डेवलप कर लिया इस तरह से, अपनी नेक की मदद से अपनी लॉन्ग नेक डेवलप करने की कोशिश की ताकि वो ऊंचाई पे जाके खाना खा सके। इस तरह करते करते जो जिराफ थे वो प्रेजेंट स्टेज तक हमें मिले, जिनकी एक लॉन्ग नेक होती है। और ये लॉन्ग नेक, आपने देखा कि ये लॉन्ग नेक की वजह से जो जिराफ थे जिन्होंने ये एबिलिटी डेवलप की,
वो उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो सका, जबकि जो शॉर्ट नेक जिराफ थे जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं की या जिन्होंने कोशिश नहीं की खुद को डेवलप करने की अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट होते चले गए। सो इस तरह से जो म्यूटेशंस हैं वो ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवेबिलिटी को प्रमोट करती हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें एनवायरनमेंट चूज करती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा और ग्रो करेगा और फ्लरिश करेगा। इस चीज़ को हम अडेप्टेशन भी कहते हैं, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ऐसे फीचर्स का डेवलप होना, ऐसे फीचर्स का प्रमोट होना जो कि ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवेबिलिटी में, उसकी रिप्रोडक्शन में और उसके आगे बढ़ने में, उसे फ्लरिश करने में हेल्प करती हैं, अडेप्टेशंस कहते हैं, और इसकी वजह भी म्यूटेशंस होती हैं। एक एक्टिविटी करते हैं, कुछ सवाल हैं आपके सामने, आपने मेरे साथ साथ इनको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, कैन यू थिंक ऑफ अ म्यूटेशन दैट कुड बी बेनिफिशियल टू एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल? एनी कैरेक्टरिस्टिक या एनी म्यूटेशन जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में हेल्प करें। हाउ माइट अ हार्मफुल म्यूटेशन अफेक्ट एन ऑर्गेनिजम्स फिटनेस? अगर कोई म्यूटेशन हार्मफुल है तो इससे ऑर्गेनिज्म पे क्या असर होगा? क्या वो उसको सर्वाइव करने में हेल्प आउट करेगी या नहीं? What are some examples of neutral mutations? इसके बारे में आप थोड़ा सा इंटरनेट सर्च करेंगे और फिर ये एक्टिविटी कंप्लीट करके अपने रिस्पॉन्सेज स्टिकी नोट्स पे लिख के अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं और अपने टीचर को भी रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द होमवर्क। होमवर्क क्या है कि राइट अ शॉर्ट एसे डिस्कसिंग द रोल ऑफ म्यूटेशंस इन एवोल्यूशन। इन म्यूटेशंस का एवोल्यूशन में क्या रोल है ये आपने बताना है इन अ शॉर्ट पैराग्राफ और एसे। In the next lecture, we'll discuss adaptations. Till then, take care yourself. Allah Hafiz.